Hello everyone, welcome to my channel. Today we will continue second order derivative. In the previous lecture I have already started second order derivative. I told the concept of second order derivative. Also we have done some simple problems. We are given a function differentiating two times. We are finding second order derivative. Today we will consider some more questions. I have written 5 questions. You can pause the video and write down the question. Let me start. Question number 1 is, if e power y into x plus 1 equal to 1, then prove that d square y by dx square equal to dy by dx का whole square. ठीक है? तो to do this question, we need first derivative as well as second derivative. dy by dx is the first derivative, मतलब first order derivative. This is second order derivative. तो देखो स्टूडेंट्स मैं कैसे कर रहा हूँ. फर्स्ट वन गिवन क्या है, e पावर y into x plus 1 equal to 1. Clear? So we will differentiate directly. Differentiate with respect to x. तो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल यूज होगा. फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव x plus 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर y dy by dx. 1 का डेरिवेटिव 0. सो यू नो प्रोडक्ट रूल. क्लियर? तो अभी क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, इफ यू सी आई कैन टेक आउट e पावर y कॉमन. So what will be left? 1 plus x plus 1 dy by dx equal to 0. So you can see there are product of two factors equal to 0. Either ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा. Students remember e power anything cannot be 0. So we take this. Hence 1 plus x plus 1 dy by dx equal to 0. So you are understanding? Actually we in this step we have product of two factor equal to 0. Either ये 0 होगा नहीं तो ये factor 0 होगा. But this cannot be 0. We can write also e power y not equal to 0. Exponential factor cannot be 0. So if you see from here, your dy by dx will be minus 1 by x plus 1. Now first you bring this one this side, minus 1 होगा, then this factor will be divided. Differentiate again. Why we are differentiating again? Because in the question you need second order derivative. तो क्या बनेगा, d square y by dx square equal to minus 1 by x plus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा. जैसे 1 by x का minus 1 by x square होता है, इसका भी वही होगा, minus 1 by x plus 1 का स्क्वायर. Clear students? Into x plus 1 का डेरिवेटिव 1. So finally the answer is 1 by x plus 1 का whole square. So we have obtained first order derivative, also second order derivative. Now come to the question. In the question we have to prove d square y by dx square equal to dy by dx whole square. ठीक है? अभी यहाँ से देखो स्टूडेंट, हमारे जो d square y by dx square इतना आया है, if you observe carefully dy by dx का वैल्यू क्या है, minus 1 by x plus 1. तो यहाँ पर क्या है स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर विथ माइनस है, क्योंकि dy by dx इज माइनस ऑफ 1 by x plus 1. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस हो जाएगा. सो दैट अभी इसके प्लस में मैं dy by dx लिख पाऊंगा. So we got the proof. D square y by dx square equal to dy by dx का whole square. This is a very easy question. कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा. Hence d square y by dx square equal to dy by dx का whole square. Good. Okay. कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में. We differentiated twice and got the answer. Next question क्या है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 2. If y equal to
a sin mx plus b cos mx. Then prove that y2. In the last video I explained what is y2. It is another notation of second order derivative. y2 plus m square y equal to 0 लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, y दिया है a sin mx plus b cos mx। y2 चाहिए प्रूफ में, तो हमें y1 भी फाइंड करना है, y2 भी फाइंड करना है। सो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वी विल यूज दिस नोटेशन y1 y2, वो सब नोटेशन यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन डिमांड्स दैट। y1 क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल है, डेरिवेटिव a इंटू साइन mx का क्या होगा, cos mx इंटू m आएगा तो ma cos mx होगा। यहाँ पर cos है तो उसका तो डेरिवेटिव माइनस आएगा, माइनस cos mx का क्या होगा, माइनस m sin mx। सो mb sin mx। ठीक है, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट y2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y2। रिमेंबर स्टूडेंट, जैसे हम y का डेरिवेटिव y1 लिखते हैं, y1 का डेरिवेटिव y2 लिखेंगे। y2 क्या होगा देखो, ma कांस्टेंट, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, cos आ रहा है तो माइनस होगा, माइनस m मतलब माइनस m स्क्वायर a sin mx। फिर इसका क्या होगा, यहाँ पर साइन है, ये तो माइनस है, इट इज होगा sin mx का m cos mx मतलब m स्क्वायर b cos mx। Then come to the proof। प्रूफ में क्या चाहिए, y2 plus m square y equal to 0। देखो सुन मैं कैसे लिख रहा हूँ, if you observe carefully, राइट साइड में से माइनस m स्क्वायर कॉमन ले जाओ, माइनस माइनस m स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, a sin mx plus b cos mx। इसे करने का फायदा क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है a sin mx plus b cos mx, दैट इज योर y। तो यहाँ पर मैं y लिख पाऊंगा, सो y2 इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y। फिर इसको इधर भेज दो, y2 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। यही था प्रूफ करने के लिए, हैंस प्रूफ। बहुत सिंपल है इसका क्वेश्चन सब। डेरिवेटिव करके हमें थोड़ा मैनिपुलेट करना होगा, क्वेश्चन में जो दिया होगा वो फाइंड करने के लिए। अगर हम खाली डेरिवेटिव करके बैठेंगे तो प्रूफ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू प्रूफ वी हैव टू मैनिपुलेट द आंसर, एडजस्टमेंट करके वी विल गेट द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x देन फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y ln। इसका मतलब क्या है, हम इसको दो बार डेरिवेटिव करेंगे, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का एक आंसर आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जो भी आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ y अलोन लिखो, मतलब y के टर्म में लिखना होगा। अगर x आएगा तो x को हम हटाएंगे, तो ये कैसे होगा देखो फ्रेंड, y क्या है, cos इनवर्स x। ठीक है, y है cos इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट d over dx, जिसको हम y1 भी बोलते हैं। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, -1 by रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर। सब फंडामेंटल डेरिवेटिव यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, d over dx इक्वल टू -1 इंटू 1 minus x स्क्वायर की पावर -1। इसको मैं ऊपर भेज दिया। सो जब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो थोड़ा इजी होगा ऐसे रखने से। स्टूडेंट्स, d over dx का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। अभी इसमें सिंपल चेन रूल अप्लाई होगा, इसमें डेरिवेटिव होगा -1 इंटू इसका क्या होगा, -1/2 इंटू 1 minus x स्क्वायर की पावर -1 इंटू पावर का डेरिवेटिव हो गया, बेस में क्या है 1 minus x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव -2x। 1 का 0 होगा, माइनस x स्क्वायर का -2x होगा। इफ यू सी 2 2 कैंसिल, 1 2 3 माइनस है, सो तुम्हारा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर क्या आ रहा है, ऊपर तक x बच रहा है -x। ये जो पावर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -3/2 होगा, उसको नीचे ले जाओ, 1 minus x स्क्वायर की पावर 3/2। एक्चुअली दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव, बट अभी क्वेश्चन को पढ़ो
क्वेश्चन बोल रहे जो भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा उसको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वाई अलोंग, बट हमारा आंसर तो एक्स में आ गया। इसको वाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी है। जब हमें दिया हुआ था y इक्वल cos इनवर्स x, वहां से x क्या होगा, देखो स्टूडेंट cos y होगा, cos इनवर्स जब इधर आएगा तो cos हो जाएगा, तो x के जगह पर हम माइनस x के जगह पर हम cos y पुट कर देंगे इस आंसर में, तो दैट इज माइनस cos y डिवाइडेड नीचे होगा 1 माइनस cos स्क्वायर y टू द पावर 3/2। लेट अस सिंपलीफाई, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, ऊपर है माइनस cos y, देखो स्टूडेंट व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर y, sin स्क्वायर y, sin स्क्वायर y टू द पावर में क्या है 3/2, बताओ क्या होगा, sin स्क्वायर y के पावर में 3/2 है, पावर में 3/2 है, sin में पावर 2 है, सो 2 2 कैंसिल होगा, मतलब फाइनल आंसर इज माइनस cos y डिवाइडेड sin cube y। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। सो हम नॉर्मली जैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे, लास्ट में हम x की जगह पर cos y पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टिल आई विल एक्सप्लेन। इस चैप्टर से हमेशा एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है नॉर्मली इन CBSE बोर्ड एज वेल एज इन CHSE बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, y if y equal to y एक फंक्शन है 500 e की पावर 7x plus 600 e की पावर -7x, then prove that d square y by dx square equal to 49y। this is similar to question number 2, एग्जैक्ट वैसे ही होगा, फंक्शन थोड़ा अलग है। 4 में दिया है y is equal to 500 e की पावर 7x plus 600 e की पावर -7x, ठीक। दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर चाहिए, सो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट यू शुड ट्राई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम पहले डेरिवेटिव करेंगे d बाई dx आएगा, क्या आएगा देखो 500 कांस्टेंट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर 7x, तो इसके लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ चेन रूल पता होना चाहिए। e पावर 7x का डेरिवेटिव इनटू 7e की पावर 7x, इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसके पावर में माइनस है तो इसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा, माइनस 600 इनटू 7 e की पावर -7x, ठीक है। डोंट मल्टीप्लाई दिस, लेट इट बी लाइक दिस। फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो विल गेट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 500 इनटू 7, इसका फिर से वही होगा 7e की पावर 7x माइनस 600 इनटू 7 इनटू इसका अगेन माइनस होगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा 7e की पावर -7x, ठीक है। इफ यू सी द क्वेश्चन यू नीड 49y ऑन द राइट साइड, तो केयरफुली देखो, यहाँ पर 7 इनटू 7 है 49, यहाँ पर भी 7 इनटू 7 है, तो इफ यू सी केयरफुली ये 7 7 49, ये 7 7 49 वो कॉमन में आएगा, ठीक है। तो अगर हम 49 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, तो प्रूव हो गया स्टूडेंट। ये जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है दिस इज योर y, यू सी दिस इज योर y। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये सब होना चाहिए, 49y, कुछ भी हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते हैं इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर डायरेक्ट आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है y equal to, this is important question for your exam, y equal to a cos log x plus b sin log x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0। अगर y2 y1 है इस क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे।
तो 5 का आंसर देखो स्टूडेंट, y दिया है a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ। पहले जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेन रूल पकड़ में होना चाहिए। इफ यू नो प्रॉपर्ली चेन रूल यू कैन डू एवरी क्वेश्चन इन डेरिवेटिव। तो a द कांस्टेंट cos log x में पावर तो नहीं है, cos का डेरिवेटिव होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, मतलब by x आएगा। ये हो गया तुम्हारा a cos log x का डेरिवेटिव। सिमिलरली इसमें क्या होगा, प्लस sin है, sin का डेरिवेटिव cos log x by x। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस चैप्टर में जब भी डेरिवेटिव करने के बाद राइट साइड में बाई में कुछ दिखेगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। यू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे xy1 विल बी माइनस a sin log x। तुम्हें पता चलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फायदा क्या है। ठीक है, फिर अभी डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स, differentiate again, you should remember this part, differentiate again with respect to x। लेफ्ट साइड में केयरफुल स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। x एक वेरिएबल है, y1 भी एक वेरिएबल है। जैसे हम बोल रहे थे y भी एक अननोन फंक्शन ऑफ x है, y1 मतलब d और dx, वो भी एक अननोन फंक्शन ऑफ x, दैट इज नॉट ए कांस्टेंट। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कल मैंने बताया था, तुम्हें पता भी है। y1 का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, y2। जैसे y का डेरिवेटिव y1 वैसे y1 का डेरिवेटिव y2। फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1। ठीक, अभी राइट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस a sin का डेरिवेटिव cos log x डिवाइडेड x, फिर इसका भी अगेन माइनस होगा क्योंकि cos है, माइनस b sin log x by x। So in this step we are seeing that y2 आ गया है। यहाँ से ही देखो स्टूडेंट प्रूफ तुम्हारा हो जाएगा। अभी भी देखो राइट साइड में by x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेरिवेटिव नहीं करेंगे, अभी थोड़ा इसको अरेंजमेंट करेंगे। जब by x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू राइट साइड में स्टूडेंट देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में क्या है, x² y2 आ गया, xy1 भी आ गया, प्लस y चाहिए। अगर इस ब्रैकेट को देखोगे ये तुम्हारा y था, इसके बदले में मैं y डाल सकता हूँ, दैट विल इंप्लाई x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू माइनस, यहाँ से माइनस को इधर ले आओ, x² y2 प्लस xy1 plus y equal to 0। This type of question is generally asked in the exam। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बताऊंगा और 4-5 क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर होगा तो ठीक है, तो पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हम करते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद ही हम एडजस्टमेंट करते हैं। जहाँ पर इसमें क्या हो, पहले हमने जब डिफरेंशिएट किए by x दिखाई दे रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर डिफरेंशिएट के पर बी केयरफुल, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल यूज होगा क्योंकि x भी वेरिएबल है, y1 भी वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट विल टेक क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर से हमेशा सीबीएसई सीएचएसई में एक क्वेश्चन जनरली आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 6 is question number 6, if y equal to tan inverse x, then prove that। what you can do, you can pause the video and you will try yourself। ये है क्वेश्चन, प्लस 2x y1 क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख रहा हूँ, if y equal to tan inverse x का square, then prove that x square plus
1 का स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 इक्वल टू 2. Let us find the answer of these two questions. Answer number 6. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो y दिया है tan इनवर्स x. प्रूफ स्टेटमेंट में y2 के y1 भी है. तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे. वो तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे y1 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में y1 y2 नोटेशन है. y1 मतलब समझ रहे हो d/dx. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, 1/1 प्लस x स्क्वायर. सिंपल है. यहाँ पर भी y दिखाई दे रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करने से बेहतर होगा, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट y2. समझ रहे हो ना. तो बीच में लिखो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पर भी लिखना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पर भी लिखना होगा. अभी देखो स्टूडेंट राइट लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल यूज होगा. फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि 1 का 0 x स्क्वायर का 2x इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट 0, बिकॉज़ इन दिस स्टेप वी आर डिफरेंशिएटिंग. इफ यू सी स्टूडेंट दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. इसको अगर अरेंज कर देंगे तो 2x y1 आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन तो 4 मार्क में नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसका वैल्यू कितना होगा. ऑप्शन में कुछ होगा 0 1 2 3 कुछ भी होगा तो आंसर 0 है. तो यू शुड अंडरस्टैंड द अप्रोच. क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जैक्टली 6 की तरह होगा, बट इसमें क्या दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर. ठीक है. इसमें भी y2 y1 है, तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे. देखो स्टूडेंट कैसे होगा. y का डेरिवेटिव y1 लिखेंगे. डोंट कंफ्यूज, y1 इज d/dx. इन द प्रीवियस वीडियो आई क्लियरली एक्सप्लेन डिफरेंट सिंबल्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंट सिंबल्स ऑफ सेकंड डेरिवेटिव. इसका कैसे होगा स्टूडेंट डेरिवेटिव. पावर दिखाई दे रहा है तो चेन रूल होगा. मतलब क्या होगा 2 tan इनवर्स x इनटू 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब by 1 प्लस x स्क्वायर. ठीक है. फिर y दिख रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 प्लस x स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट. डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. बहुत इजी है क्वेश्चन. इसमें प्रोडक्ट लगेगा. फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. राइट साइड 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर. ये तो डेरिवेटिव स्टेप खत्म हो गया. अभी प्रूफ की तरफ आओ. क्या चाह रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए. अभी अगर तुम देखोगे इस स्टेप में डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2. जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू, देखो आंसर आ गया. मतलब जो प्रूफ स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो गया. ठीक है. इजी है ना. क्वेश्चन 3-4 स्टेप में होगा. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एज 4 मार्क क्वेश्चन इन द एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. we will do 3 more questions. Okay students, देखो क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया. 8 क्या है. इफ x इक्वल टू sin t y इक्वल टू sin pt. ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है. देखो x y सेपरेटली डिफाइंड है, जिसमें t पैरामीटर है. देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस p स्क्वायर y इक्वल टू 0. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
देखो तुम्हें इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा पैरामीट्रिक फंक्शन से हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे पाएंगे। मतलब पैरामीटर t को एलिमिनेट करके हम xy में एक फंक्शन मतलब रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें y2 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। y1 क्या है? dy बाय dx। सो वी आर गिवन x इक्वल टू sin t। बताओ स्टूडेंट t क्या होगा इसमें? यहाँ sin इनवर्स x होगा। अगर x sin t है तो t क्या होगा? sin इनवर्स x। y क्या दिया है? sin pt। दिस इंप्लाइज y sin pt। t का ये वैल्यू डाल दो। ठीक है, so in this way I have eliminated the parameter t and obtained a function y in terms of x. This is very easy step. यहाँ से हम जो प्रूफ किया है प्रूफ करने के लिए वो आ जाएगा स्टूडेंट। अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So in this question what you understood, मतलब अगर पैरामीट्रिक फंक्शन दिया होगा तो कैसे हम पैरामीटर को हटाकर x और y में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा, इस क्वेश्चन में हो गया, सब क्वेश्चन में नहीं हो सकता। जहाँ पर होगा हम वैसे करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y1 क्या होगा स्टूडेंट? y का डेरिवेटिव तो हम y1 लिखेंगे, राइट साइड में चेन रूल पड़ेगा। sin ऑफ p sin इनवर्स x का डेरिवेटिव cos p sin इनवर्स x इनटू फिर p sin इनवर्स x का डेरिवेटिव p कांस्टेंट डिवाइडेड रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? कैसे हम चेन रूल फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। अभी बाई में दिख रहा है, मैं बता रहा था पिछले क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 1 माइनस x स्क्वायर y1 इक्वल इस p को आगे ले आओ p cos p sin इनवर्स x। ठीक है, अभी और एक लॉजिक स्टूडेंट, रूट दिखाई दे रहा है तो रूट को हम एलिमिनेट करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर राइट साइड में बाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रूट होगा स्क्वायरिंग करेंगे। इतना याद रखो। करने से क्वेश्चन में जो पूछ रहा होगा वो इजीली हो पाएगा। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस x स्क्वायर y1 स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर y1 स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर क्या है? उसमें बाहर p है, p स्क्वायर आएगा, cos है cos स्क्वायर आएगा। इतना ही होगा, cos स्क्वायर p sin इनवर्स x। अंडरस्टूड? अभी एक चालाकी काम करना होगा। देखो फ्रेंड क्या 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर का एज इट इज लिखो। यहाँ पर जो cos स्क्वायर समथिंग दिखाई दे रहा है उसको तुम 1 माइनस sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। क्यों हमने हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास sin ऑफ p sin इनवर्स x का वैल्यू क्या है? y। वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। सो 1 माइनस x स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये जो लिखा है sin स्क्वायर p sin इनवर्स x, उसका मतलब क्या है? sin ऑफ p sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। बट sin ऑफ p sin इनवर्स x क्या है तुम्हारा? y है। सो वी गेट लाइक दिस। अभी फिर से डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट अगेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में क्या होगा? प्रोडक्ट रूल होगा। इसके बारे में मैंने कल बताया था। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। यू कैन चेक द लास्ट वीडियो, वहाँ पर मैंने बताया था y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे? 2y1 y2। तो जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x होगा। तो इसको माइनस करके यहाँ पर 2x लिख दो। इक्वल राइट साइड में क्या होगा? उसमें p स्क्वायर तो बाहर है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में वो रहेगा। ब्रैकेट में 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y1। अंडरस्टूड और नॉट? अभी इस स्टेप में क्या हम समझेंगे? देखो इफ यू सी केयरफुली 2 हर जगह है तो 2 कैंसिल होगा। इस ब्रैकेट में 0 का तो कुछ रोल नहीं है ना, 2 दिखाई दे रहा है तो 2 कैंसिल होगा। फिर से देखो y1 एक y1, यहाँ पर एक y1 है, वो भी कैंसिल हो पाएगा। तो बचा क्या है?
वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, यहाँ पर बचा है माइनस एक्स वाई वन। राइट साइड में देखो पी स्क्वायर इंटू माइनस मतलब माइनस पी स्क्वायर वाई, वो जब लेफ्ट साइड आएगा प्लस पी स्क्वायर वाई बनेगा इक्वल टू 0। यही था तुम्हारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, यू मे गेट 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में पी के जगह पर कुछ कुछ दिखाई देगा, 2 3 4 ए बी सी वैसे कुछ दिखाई देगा। अगर 2 होगा यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अगर 3 होगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ पर ए होगा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यू कैन मार्क इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन क्या है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x to the power n y to the power n equal to x plus y की power n plus n, then prove that d square y by dx square equal to 0। इसका मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आधा बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक्सप्लेन किया है। आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हें याद होगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका dy by dx y by x आएगा। यू कैन चेक योर नोट इफ यू आर मेंटेनिंग ए नोट। मैं नोट में देखो ये क्वेश्चन था x to the power n into y to the power n equal x plus y to the power n plus n, दोनों साइड log लेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली dy by dx तुम्हारा ये आएगा। सो इतना तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। वो कैसे होगा देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका तो डेरिवेटिव हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर। राइट साइड में स्टूडेंट डिवीजन रूल लगाएगा, नीचे x स्क्वायर आएगा, ऊपर x into dy by dx minus y into 1। यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अप्लाई डिवीजन रूल। नीचे x स्क्वायर, ऊपर x into y का डेरिवेटिव dy by dx माइनस y into x का डेरिवेटिव 1। बट हमें तो प्रूफ करना है 0। प्रूफ कैसे होगा देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो dy by dx दिखाई दे रहा है उसके जगह पर हम y by x डाल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, x into y by x minus y divided x square। यू कैन से x कैंसल्स, तो ऊपर क्या बचा है y minus y 0 by x square equal to 0, hence 2, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो दिस इज आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जाम, सो यू कैन रिमेंबर दिस एज ए रिजल्ट, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये तुम्हें प्रूफ करना होगा। पहले यहाँ पर दोनों साइड लॉग लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो dy by dx तुम्हारा सिंपलीफाई होकर y by x आएगा। देन अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर जो dy by dx दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम y by x पुट करेंगे तो विल गेट 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if y is equal to x plus root 1 plus x square to the power b, then prove that 1 plus x square y2 plus xy1 equal to p square y। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेन रूल अगर पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चैप्टर का हर क्वेश्चन हो जाएगा। शुड नॉट हैव एनी डाउट। इस चैप्टर में हम एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव करने के बाद फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक्स नेम इज दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होगा देखो स्टूडेंट, y है हमारा ये, सो पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम पहले डेरिवेटिव करेंगे y1 आएगा, ठीक है। इसका डेट कैसे होगा, पावर दिखाई दे रहा है, तो p into x plus root 1 plus x square
स्क्वायर टू द पावर p माइनस 1। पावर डिफरेंशिएट होने के बाद अकॉर्डिंग टू चेन रूल बेस डेरिवेटिव होगा। बेस मतलब ये x का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पर रूट दिखाई दे रहा है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव x। सो चेन रूल हमें आना चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 2 कैंसिल, लेट मी सिंप्लीफाई दिस p into x plus root over 1 plus x square to the power p minus 1। यहाँ पर 1/1 लिख के एलसीएम ले जाओ, क्या बनेगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी देखो स्टूडेंट, इस ब्रैकेट में जो है ऊपर वही है ना, इसका पावर अगर मैं पूछूंगा तो 1 बोलोगे, इसका पावर p माइनस 1, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, इसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा y1 इक्वल टू p x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर p। यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग आउट नॉट माय पॉइंट। इसके पावर में p माइनस है, यही सेम इधर लिखा है, मतलब इसका पावर 1 है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, p माइनस 1 प्लस 1p, और नीचे एक है ना बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था बाई में अगर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू p। इंटरेस्टिंग क्या है देखो स्टूडेंट, अभी जो ये दिखाई दे रहा है दिस इज योर y, दिस इज योर y, तो यहाँ पर हम y रिप्लेस करेंगे। अंडरस्टूड। और एक बात मैंने बताया था, कभी भी रूट ओवर दिखाई देगा तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें y2 लाना है, यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 y2। I told in the last video, last class, last मतलब वीडियो के एंड में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाया था, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हम हमेशा ये लिखेंगे प्लस सेकंड फंक्शन y1 स्क्वायर इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका आएगा स्टूडेंट 2x, राइट साइड में p स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y1। अंडरस्टूड। So if you see carefully 2 cancel, y1 कैंसिल। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उस वहाँ पर भी ऐसे ही कैंसिल हो रहा था। आफ्टर दिस स्टेप व्हाट यू राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस यहाँ पर है x y1 इक्वल टू राइट साइड में क्या है p स्क्वायर y। You can see the question was this only, जो स्टेटमेंट यही था। So hence I got idea how to do questions on second order derivative. So in the next video I will discuss another concept of second order derivative, parametric function का second order derivative कैसे होता है, that is also very important। Then we will start application of derivative, वो खत्म होने के बाद। Okay students, thank you for watching my channel। मैं बार बार बोलूँगा, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है, मतलब if you are understanding whatever I am explaining in this channel, then do like, share and subscribe the channel and click on the notification bell so that in future मैं जब भी वीडियो बनाऊँगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा। And if you are interested, you can see those videos। So this channel is purely for 11th and 12th mathematics। I am now uploading only 12th class videos on in recent मतलब कुछ दिनों के बाद मैं फर्स्ट ईयर का वीडियोस भी अपलोड करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।